So we are doing income from salary. Income from salary, the most important section is the charging section. Charging section gives the authority for the government to tax you under this head of income. The important point under section 15 is there should be an employer-employee relationship, and it is taxed on due or receipt, whichever is earlier. Okay. Exception to this is areas of salary. So areas of salary will always be taxed only when received. For everything else, it is going to be taxed on due or receipt, whichever is earlier. There should be an employer-employee relationship. Then we know that our salary consists of various components. ओके बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं सैलरी के. वन ऑफ देम इज बेसिक. बेसिक सैलरी इज अ कंपोनेंट ऑफ सैलरी विच इज ऑलवेज टैक्सेबल. इसमें ना कोई एग्जेम्पशन है ना कोई डिडक्शन है, पूरा का पूरा हमेशा टैक्सेबल होता है. नेक्स्ट इज डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस इज मनी गिवन to combat inflation. It is also called as an inflation allowance. It is given most of the times as a percentage of the basic. This is also taxable always. Then there are some allowances, we call it special allowances. These special allowances, there is an exemption available. Exemption is available under section 1014, and exemption for HRA is available under section 1013A. Let's see these allowances. All of these various components make your gross salary. Okay? तो ये बहुत सारे अलग अलग components हम देखते जाएंगे. Okay? फिर perquisite आ जाता है. Perquisite क्या है? This is not money, but it is monetary benefit. That is a car, house, some asset is given to you for use. All of this will be a perquisite. This will also be added to your salary to get something called as a gross salary. Okay, gross salary, various components of salary will be all added together to get your gross salary. Right now we studied basic. Basic क्या है? जो तुम्हारा बेसिक सैलरी है वो हमेशा टैक्सेबल होगा. डियरनेस अलाउंसेज या इन्फ्लेशन अलाउंस विच इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल. इसके अलावा देर आर सम स्पेशल अलाउंसेज विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. ओके, दैट इज एन एग्जेम्पशन इज गिवन फॉर दो स्पेसिफिक अलाउंसेज. अदर देन दो स्पेसिफिक अलाउंसेज एवरी अदर अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल. ओके, सो एक बार फटाफट से वो अलाउंसेज देख लेंगे. Exempt to the extent used. If you have used it, you can claim an exemption. If you haven't used it, you can't claim an exemption. Okay. Uniform allowance. Conveyance allowance. What is conveyance? Anything given from office to office. Official purpose के लिए कहीं जा रहे हो तो पूरा का पूरा exempt है. To the extent used. Traveling allowance. Again, this is office to office, but I send you outside India. Okay, for some work purpose. अब तुमको दिल्ली भेजा, दुबई भेजोगे तो तुमको वो टिकट्स का खर्चा होगा ना. सो अगर तुमने वो पैसा यूज़ किया है टिकट्स के लिए, पूरा का पूरा exempt है. Okay, you receive money. That money you used for your traveling, for your conveyance, for your uniform, fully exempt. Daily allowance. Now if I am sending you outside India or I am sending you within India also somewhere, conveyance या traveling allowance के अलावा, ओके, तो वो खाने पीने का भी खर्चा होगा ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेली अलाउंस. रिसर्चर एंड लास्ट वन इज हेल्पर. ये सब अगर तुमने यूज़ किया है, बिंदास टेक अ फुल एग्जेम्पशन. ओके, प्रोवाइडेड व्हाट इज द वर्ड इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज इट शुड बी यूज्ड. यूज नहीं हुआ तो तुम एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर सकते. ओके, ये नेक्स्ट वाला देखो. दिस इज मैक्सिमम एग्जेम्पशन. दिस इज एग्जेम्पशन इज गिवन. ओके,
अप टू अ लिमिट। तो लिमिट ऑफ एग्जाम्शन इज गिवन, इससे ज़्यादा तुमको एग्जाम्शन मिल ही नहीं सकता है, चाहे तुमने यूज भी किया। मैक्सिमम एग्जाम्शन इज अप टू अ लिमिट। ओके, ट्राइबल अलाउंस, ट्राइबल अलाउंस हमने कितना देखा था, 200 रुपीज़ पर मंथ। ओके, देन हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस किसको मिलता है, बच्चों के लिए मिलता है। ओके, 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्स 2 चिल्ड्रन। अगेन दिस इज अप टू द लिमिट। तुम लिमिट के ऊपर यूज करोगे तो तुमको नहीं मिलेगा, लिमिट से कम करोगे तो उतना ही मिलेगा। लिमिट से कम करोगे अप टू अ लिमिट। सो यहाँ इफ यूज्ड लेस देन लिमिट, दिस इज इंपॉर्टेंट ना, लेस देन लिमिट, then your exemption will be how much, amount used. Okay, so अगर next वाला देखो, education allowance for your children, education allowance 100 rupees per month per child, max 2 children. Now see here, you are receiving 100 rupees per month, you used only 70 rupees, तुमको exemption कितना मिलेगा, 70 rupees. Okay, अगर तुमने सिर्फ 70 रुपीज़ यूज़ किया है तो तुमको एग्जाम्शन 70 रुपीज़ ही मिलेगा, यू वोंट गेट फुल 100. इट्स नॉट अ रूल दैट यू शुड गेट फुल 100, दिस इज द मैक्सिमम यू कैन गेट. इफ यू हैव यूज 500 यू स्टिल गेट ओनली 100 रुपीज़ पर मंथ एग्जाम्शन. ड्राइवर अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस कितना मिलेगा, ये किसको मिलता है, ड्राइवर अलाउंस इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई है. ओके, आने जाने का जो खर्चा रहता है उसको, तो उसके लिए मैंने बोला है ड्राइवर अलाउंस. 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और 10,000 whichever is less. हिली एरिया अलाउंस, ओके, कितना है ये, 300 पर मंथ. एंड देन वी सॉ अंडरग्राउंड अलाउंस, दैट इज मैक्सिमम. इसमें अलग अलग है, जितना ज़्यादा अंडरग्राउंड जाओगे उतना ज़्यादा तुमको मिलते जाएगा. तो ये स्टार्टिंग होता है अराउंड 800. ठीक है, नाउ दीज आर अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस जिसमें एग्जाम्शन इज गिवन अंडर सेक्शन 1014. ओके, इसके अलावा एक और अलाउंस है सबका फेवरेट, HRA. ये एक क्वेश्चन HRA का तो आएगा ही 100%. एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 1013A, दैट इज HRA. House rent allowance. House rent allowance is amount is given for the purposes of rent, so that you can take a house on rent as for an employee. So exemption is least of following amount received, 40 और 50% of salary. ये 50% कब मिलेगा, अगर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में हो तो. बाकी सब जगह 40% ही मिलेगा. एंड लास्ट वाला रेंट पे माइनस 10% ऑफ सैलरी. ओके, नाउ व्हाट इज दिस सैलरी का डेफिनेशन. सैलरी इज बेसिक प्लस कमीशन BCD, बट C क्या होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. इट कांट बी वन फिक्स्ड अमाउंट गिवन, देन इट वोंट बी काउंटेड. DA, डियरनेस अलाउंस. BCD में डियरनेस अलाउंस शुड बी एन RDA, और इट शुड बी गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक. ओके, और इट शुड बी कॉल्ड एज टर्म्स, इट इज़ गिवन इन टर्म्स. ऐसे वर्ड्स यूज होने चाहिए. इन दैट केस देन ओनली यू टेक इन टू अकाउंट C and D, अदरवाइज बेसिक में ही खुश रहेंगे. ओके, ये सब हो जाएगा तुम्हारा एग्जेम्पशन फॉर HRA. नाउ इसके अलावा कोई भी अलाउंस है, ओके, ये अलाउंसेस के अलावा कोई भी अलाउंस है, पूरा का पूरा बिंदास टैक्सेबल हो जाएगा. सो तुम्हारे लिए जो एक है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो था, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, ओके, ऑफिस से घर, रेसिडेंस एंड रेसिडेंस से ऑफिस जो था वो पहले एग्जेम्पशन था, अब वो एग्जेम्पशन नहीं रहा. ओके, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा. दैट वाज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंस कोई बोलता था, बेसिकली कन्वेंस अलाउंस, एनीथिंग दैट इज गिवन
from office to home, okay, and home to office to travel is fully taxable as of date. Okay, now we studied basic, dearness allowance, and all other allowances. We studied allowances, these three we have studied. Now basic, fully taxable, dearness allowance, fully taxable. Allowances are also fully taxable except if the allowances are forming a part of special allowances and there is an exemption given under section 1014 or section 1013A, that is, and it is an HRA. Otherwise allowances भी पूरे के पूरे taxable है. मैम allowances क्या है? अरे allowances money given for a specific purpose. पैसा दिया है लेकिन उसको नाम दिया है साथ में. ये हाउस रेंट अलाउंस है, तुमको 20,000 दे दिया. अब तुमने अगर वो 20,000 अगर तुमको एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो हमने ऊपर देखा है कैसे एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं HRA के लिए. ओके, सिमिलरली तुमको मैंने भेज दिया, आई हैव सेंट यू टू माथेरान फॉर 7 months टू गो एंड वर्क. So in that case it will be a hilly area allowance. Hilly area allowance I am giving you 50,000 a month. तुमको exemption कितना मिल सकता है? सिर्फ 300 per month. Okay? So you इसके अलावा I give you tiffin allowance. अरे खाना तो खाओगे ना, तो तुमको टिफिन अलाउंस दिया. टिफिन अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. मेडिकल अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. एंटरटेनमेंट अलाउंस, ओके, जाओ नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लो, एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल है. देयर इज नो एग्जेम्पशन गिवन. ओके, ये सारे के सारे टैक्सेबल हो जाएंगे अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक स्पेशल एग्जेम्पशन गिवन. नाउ देयर आर सम पीपल, ओके, स्पेशल पीपल हु गेट पूरे अलाउंसेज माफ. नाउ यू our prime minister moves all over the world, okay, when he is traveling he is receiving allowances, okay, ये सब travel के लिए वो सारा का सारा exempt है. So they are saying any high court, supreme court judges, all allowances for them by whatever name called is exempt. All allowances for high court, supreme court judges allowances. UN मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशंस के लिए इंडिया में काम करते हैं, इनके लिए भी अलाउंसेस मिलते हैं, पूरा का पूरा माफ है. ओके, देन ओके, वो सारे पूरे के पूरे माफ है ना. ये हमारी बुक्स में ऑलरेडी है, एक बार रीड कर लेना. नाउ वी आर कंसर्न्ड विथ आर ग्रॉस सैलरी. वी हैव टू अराइव एट समथिंग कॉल्ड एज अ ग्रॉस सैलरी. सो बेसिक हमने DA देखा, हमने दूसरे अलाउंसेस देखे. इसके बाद हम आज देखेंगे परक्विजिट्स. परक्विजिट क्या है? पैसा नहीं है. ओके, इट इज़ बेनिफिट गिवन. नाउ इफ आई गिव यू 2 लाख रुपीज़ का सैलरी, यू विल गो एंड स्टार्ट स्टेइंग इन अ नाइस better house, you will buy a better car. So instead of giving you 2 lakhs, what I'll do, I'll give you the car, I'll give you the groceries, I'll give you club memberships, I'll give you tickets to various shows, I'll give you gifts. All of this is not money, I am giving you a perquisite. They are saying ये perquisite भी taxed है. Okay, अब ये perquisite का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. Okay, तो वो देखेंगे. ये सब के बाद जो भी मुझे मिला ना, ये मेरा ग्रॉस सैलरी, ये मेरा ग्रॉस सैलरी. नाउ ग्रॉस से नेट सैलरी में आने के लिए 3 स्टेप्स है. नेट टैक्सेबल सैलरी, वी वांट टू कम हियर ना. तो ये कैसे होंगे? ग्रॉस है, इसका मतलब देयर इज डिडक्शंस अवेलेबल. डिडक्शंस आर गिवन अंडर सेक्शन 16. ओके, वन इज प्रोफेशनल टैक्स, डिडक्शंस. सो वन इज, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंड प्रोफेशनल. ये सब क्या है? डिडक्शन है, मतलब ये तुम सब्ट्रैक्ट करोगे. स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? फ्लैट अमाउंट तुम सब्ट्रैक्ट करोगे. 50,000, ओके, चाहे कितना भी सैलरी है तुम्हारा, 50,000 तुम डिडक्ट कर दोगे. स्टैंडर्ड डिडक्शन. ओके, एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस इज
ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इनको ही डिडक्शन मिलता है, ये वाला जो डिडक्शन है उनको ही मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो इसको स्पेशल डिडक्शन हम बोलेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन। अगर तुमको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है और अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो तुम डिडक्शन यहाँ क्लेम कर सकते हो। कितना क्लेम करोगे? 20% ऑफ बेसिक। $5,000 or amount received, whichever is less. Okay, that will be the amount of deduction you can claim. And next one is professional tax. Professional tax तुम पूरे साल भर में 2,500 per annum you can claim, provided you have paid professional tax. So most of the professionals like you and me, we have to compulsorily pay a professional tax of 2,500. We can claim it as a डिडक्शन। ओके, एक बार देखो क्या लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, लास्ट ईयर 40,000 था, ये साल से 50,000 कर दिया है तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो एक बार आराम से, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड द लास्ट वन इज प्रोफेशनल टैक्स। ओके, what is it, 20% off? Basic. Okay, this is all given in section 16. डिडक्शंस, ये हम 3 डिडक्शंस करेंगे। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, सबको मिलता है। ओके, देन इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर तुमको मिला है और अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यू कैन क्लेम अ डिडक्शन। हाउ मच डिडक्शन कैन यू क्लेम? 20% ऑफ बेसिक, 5,000 ऑफ अमाउंट रिसीव। एंड द लास्ट वन इज प्रोफेशनल टैक्स। इफ यू हैव पेड प्रोफेशनल टैक्स देन यू कैन क्लेम अ मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 2500 पर एनम, मैक्सिमम अमाउंट। तो अगर तुमने 2,000 पे किया है तो 2,000 ही क्लेम करोगे। ओके, एंड वॉट एवर यू गेट इज द नेट टैक्सेबल सैलरी। ओके, ये सेक्शन 16 हो गया। सेक्शन 15 क्या है? चार्जिंग सेक्शन, जो आज देखा। सेक्शन 16 क्या है? डिडक्शंस। 3 डिडक्शंस है, वो 3 डिडक्शंस हमने देख लिए। ओके, नाउ इसके बाद वी कम टू सेक्शन 17। सेक्शन 17 इज योर परक्विजिट्स। Now perquisites, as we said again and again, आज हमने देखा स्टैंडर्ड डिडक्शंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। ओके, नेक्स्ट इज perquisites. Now perquisites is what? Non-monetary benefit, or sometimes it could also be, mostly it is a non-monetary benefit, or it could also mean some monetary benefit. मतलब तुमने क्या किया, तुम्हारा मोबाइल का बिल भर दिया, मैंने तुमको 2,000 दे दिया, तो वो मॉनेटरी बेनिफिट हो गया। ओके, सो या मैंने तुमको घर दिया। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाउस। सो एग्जांपल, योर सैलरी इज 40,000 पर मंथ। ओके, तुम्हारा पूरा हाथ में 40,000 आता है, मैंने तुमको रहने के लिए घर दिया। ओके, आई गिव यू अ हाउस। द हाउस इज एक्चुअली इन अ प्रीमियम लोकेलिटी ऑफ बॉम्बे। ओके, साउथ बॉम्बे या साउथ दिल्ली में तुम्हारा घर है, और अच्छा 3-4 BHK घर है, 3 BHK घर है। वैल्यू ऑफ द हाउस विद नाइस सी व्यू है, तुम्हारा गार्डन व्यू है। ओके, वैल्यू ऑफ द हाउस इज 4 करोड़, 4 करोड़ का घर है। नाउ 40,000 कमाते हो तो पूरे साल भर में कितना कमाते हो? 5 लाख से कम है ना, 4,80,000 कमाते हो और घर 4 करोड़ के घर में रहते हो। ओके, नाउ इज इट राइट इफ द टैक्स अथॉरिटीज टेल यू, एक काम करो, 4 करोड़ के घर में रहते हो ना, तो वैल्यू ऑफ द हाउस इज 4 करोड़ plus your salary 4,80,000, so pay a tax on your taxable salary will be 4 crore and 4,80,000. Is it correct? Is it fair?
No. नो ऑब्वियसली नॉट, यूजर नहीं चाहिए बाबा ये घर में, टैक्स कैसे भरूँ इसका, है ना. सो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट वर्क. व्हाट दे आर सेइंग इज दैट ओके, if your salary is this much, you will have to find the value of the house and you will have to add some value into your salary. तो हम क्या करेंगे, we will have to find the value of the house. Okay, so there is a method. You cannot take the market value and add it. Market value तुम नहीं ले सकते हो. Okay, और तुमको क्या करना पड़ेगा, according to this section 17 we will have to find the value. So let's see, we are taking unfurnished accommodation. And are you paying any rent to the employer? No, it is rent free unfurnished accommodation. Rent free unfurnished accommodation. तो वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है अभी हम देखेंगे तुम कौन हो. ओके, इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई it will be taxed differently. If you are a non-government employee, it will be taxed differently. Okay, government employee है, so it will be जैसे रेलवेज के एम्प्लॉयज़ हो गए, तुम्हारे आरबीआई के एम्प्लॉयज़ हो गए. ओके, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, तुमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय हो गए, तो तुमको रहने के लिए घर मिलता है. इन दैट केस इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एज पर गवर्नमेंट वैल्यूएशन, तो तुम्हारे हिसाब से जो तुम ग्रेड पे हो, ऑफिसर हो, लेट्स टेक आरबीआई. आरबीआई के क्वार्टर्स होते हैं, स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं हम जिसको बोलते हैं. ओके, नाउ if I am at a manager level, I will get a 2 BHK. If I am at a senior manager level, okay, or a vice president level, I will get a 4 BHK. So the value of the house will increase based on my salary. It will be added. तो हमको ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमको वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, कहाँ घर दिया है उसका वैल्यू क्या है, सैलरी में ऐड करना है. कोई टेंशन नहीं. गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट का वैल्यूएशन देखो और अपने सैलरी में वो अमाउंट ऐड कर दो. Let's take an example of more common non-government employee. Okay, then you will have to see if the house is rented by employer. मतलब तुम्हारी कंपनी ने रेंट किया है तुम्हारे लिए और वो रेंट भर रहे हैं, और इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. सो इफ इट इज रेंटेड बाय एम्प्लॉयर, कोई टेंशन नहीं. रेंट चार्जेस जो तुम्हारे लिए भर रहे हैं. ओके, तो मेरी सैलरी 40,000 है, मेरे को घर दिया है, घर के लिए दिया पेइंग 1 लाख रुपीज़ रेंट. ओके, बॉम्बे में प्रीमियम एरिया में मुझे साउथ बॉम्बे में घर दिया है 3 BHK, तो 1 लाख रेंट भर रहा है. चलेगा क्या? आई डोंट वांट दैट हाउस. 40,000 का सैलरी, 1 लाख का रेंट. यू आर सेइंग ओके फाइन, ठीक है, रेंट चार्जेस और 15% ऑफ सैलरी, whichever is lower. Okay, now let's say if the employer is not taking it on rent for me, it is his only house, he is allowing me to stay. In that case, if it is owned by employer, they are saying it will depend on which city, population of the city, or I can say population of the area where I am staying. Okay, if the population is 25 lakhs or less than 10 lakhs population, okay, 10 lakhs to 25 lakhs का population, ये क्या है, population of an area, and 25 lakhs and above अगर population है of that area, of that town, of that city. Okay, in that case 7.5% of, so my value of the house will be 7.5% of salary. This case it will become, okay, so now this was government employee और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई. अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तुमको देखना पड़ेगा अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है तो 15% सैलरी और रेंट पे, और इफ़ इट इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर देन यू विल सी वेयर इट इज़ ओन्ड, और तुमको कहाँ घर दिया है. अकॉर्डिंगली इट विल बी 7.5%, 10% और 15% ऑफ सैलरी. ना इसके अलावा हो सकता है तुमको रहने के लिए
होटल अकोमोडेशन दिया है, if it is hotel accommodation then and the stay is for more than at a stretch, not at a stretch, then it will be hotel charges, वैल्यू जो है ना तुमको रहने के लिए, और 24% ऑफ सैलरी. ओके, होटल चार्जेस और 24% ऑफ सैलरी. नाउ इसके अंदर ही अकोमोडेशन के अंदर ही होटल चार्जेस के अंदर, व्हाट इफ लेट्स टेक अ सिचुएशन वेयर आई एम स्टेइंग इन मुंबई राइट नाउ. ओके, आई एम स्टेइंग इन मुंबई, I have got transferred to Delhi. Now when I have got transferred to Delhi na, my spouse, my family are all staying in Mumbai right now. मैं तो चली जाऊंगी, बट उन लोगों का क्या, वो थोड़ी academic year है, उनकी कॉलेजेस स्कूल्स चालू है. Okay, so in that case I will tell my employer that listen, मुंबई का घर में रातों रात I cannot shift and go away. I will need this accommodation for 2, 3, 4 months whatever till I settle over there and then I can call my family. बहुत बार ऐसा होता है. So in that case अगर तुम्हारे पास 2 accommodation होंगे वो कुछ पीरियड के लिए, okay, so we are concerned with a dual accommodation. तुमको हमेशा के लिए डुअल अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन आई एम गेटिंग ट्रांसफर्ड, सो आई हैव दिस हाउस आल्सो एंड दैट हाउस आल्सो. ओके, सो क्या मेरा 15% 2 बार सैलरी में ऐड होगा, देखो यहाँ. ओके, 15%. सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट इफ हेल्ड फॉर अप टू 90 days, मतलब सिर्फ 90 days तक अगर इफ यू आर होल्डिंग इट, द वैल्यू ऑफ हाउस विच इज लोअर विल बी टेकन. एक ही घर लेंगे, वैल्यू ऑफ हाउस ऑफ वन हाउस, वैल्यू ऑफ वन हाउस विच इज लोअर, वैल्यू ऑफ लोअर हाउस विल बी टेकन. बट इफ इट इज for more than held for more than 90 days, if it is held for more than 90 days, okay, then you will take a aggregate, दोनों घर का वैल्यू ऐड हो जाएगा, aggregate value of both houses to be taken. ओके, आराम से देखो. रेंट ये हो गया पहला परक्विजिट हमने देखा. घर में हम क्या देख रहे हैं, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में पहली चीज देखोगे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इट शुड स्ट्राइक यू, हाँ ये स्टाफ क्वार्टर्स है, रेलवे क्वार्टर्स है, एक्सेट्रा. दैट केस गवर्नमेंट का वैल्यूएशन ऑलरेडी दिया है, मुझे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वैल्यू डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये रेंटेड है, एम्प्लॉयर ने मेरे लिए रेंट किया है, तो जो रेंट चार्जेस भर रहा है या 15% ऑफ माई सैलरी विल बी एडेड टू एज द वैल्यू ऑफ दैट हाउस. So let's say if I'm getting 1 lakh rupees as salary and I'm getting a house to stay in, okay, 15% of 1 lakh, 15,000 will be added to my salary and my taxable salary will become 1,15,000. मिल कितना रहा है, 1 लाख, लेकिन मुझे टैक्स कितने में भरना है, 1,15,000, क्योंकि 15,000 is the value of the accommodation that I have got from my employer. Okay, if it is owned by employer, then देखोगे कि कहाँ दिया है. ओके, शहर में दिया है, गांव में दिया है, तो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल डिपेंड ऑन वेयर विच एरिया ही हैज गिवन इट. सो इफ ही हैज गिवन इट वेयर द पॉपुलेशन इज लेस देन 10 lakhs, और इफ द सिटी का एरिया इज 10 lakhs to 20 lakhs और 25 lakhs एंड अबाउट, जैसे बॉम्बे में दिया है तो कोई टेंशन नहीं, 15 लाख 15% ऑफ सैलरी ले लेने का. ओके,
Now when you say salary means what? Everything is coming in salary in this particular case. Okay, इसके अलावा कभी कभी होटल अकोमोडेशन मिलता है. होटल अकोमोडेशन विल बी टैक्सेबल ओनली इफ इट इज गिवन फॉर 15 days एट अ स्ट्रेच. अगर तुमको 15 दिन से ज़्यादा दिया है एक शॉट में तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ना. और कितना टैक्सेबल होगा? होटल चार्जेस और 24% ऑफ सैलरी. ना लास्ट पार्ट इज डुअल अकोमोडेशन. डुअल अकोमोडेशन क्या होता है? तुमको एक टाइम के लिए यू हैव गॉट 2 houses, यू आर नॉट स्टेइंग इन बोथ द हाउसेज बट यू हैव एक्सेस टू बोथ द हाउसेज. ओके, तुम काम कर रहे हो दिल्ली में, फैमिली रह रहे हैं बॉम्बे में, तो यू हैव डुअल अकोमोडेशन. दैट केस अगर 90 days तक है तो एक ही घर टैक्स होगा. एक ही घर का वैल्यू ऐड करोगे. कौन से घर का? द लोअर वैल्यू. अगर 2 घर है और वो भी 90 days से ज़्यादा, सो इट विल बी एग्रीगेट ऑफ बोथ द हाउसेज, मतलब दोनों हाउसेज टैक्स हो जाएंगे. ओके, दिस इज अनफर्निश्ड, खाली घर दिया है. ओके, इन दैट केस नाउ लेट्स टेक अ सिचुएशन वेयर देयर इज फर्नीचर. कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा घर तुमको दिया है. फर्निश्ड अकोमोडेशन. If there is furniture also given, so you'll have to find the value of the furniture. Furniture. Okay, furnished accommodation. Now they are saying if furniture is also given, so you will have to see whether the furniture is owned by employer, कि उसका खुद का फर्नीचर उसने तुमको रहने के लिए दिया है या उसने तुम्हारे लिए रेंट पे लिया है. अभी तो बहुत सारे कंपनीज हो गई, फर्लैंको हो गया, रेंट पे तुम ले सकते हो फर्नीचर, तो उसने तुम्हारे लिए रेंट पे लिया है. ओके, कैबिनेट्स, बेड्स, ओके, एंड रेफ्रिजरेटर, टीवी, ऑल ऑफ दिस. लेकिन अगर उसका फुल्ली फर्निश्ड हाउस है, तुमको जाके सिर्फ कपड़े लेके रहना है उधर, इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर देन यू विल टेक 10% कॉस्ट ऑफ एसेट, नॉट रिटन डाउन वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल दी एसेट्स एंड यू विल एड इट. तो मुझे 1 लाख रुपए का फर्नीचर दिया है और मेरी सैलरी अगर 10 लाख है पर मंथ, मेरे को कितना ऐड करना है? कॉस्ट ऑफ एसेट 10,000 रुपये. ओके, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी एडेड. बट इफ इट इज रेंटेड बाय एम्प्लॉयर देन इट विल बी रेंट चार्जेस. विल बी रेंट चार्जेस. देयर इज नो मिनिमम मैक्सिमम. बोला है रेंट चार्जेस भरो. ओके, रेंट चार्जेस भरो. ना ये समझ में आया? हमने अभी 2 देखे हैं. यू हैव सीन ओनली 1, अकोमोडेशन एंड फर्नीचर. ओके, अकोमोडेशन एंड फर्नीचर. इफ यू ऑल वांट प्लीज ये तुम लोग अपने नोटबुक्स में साइड बाय साइड बनाते जाओ. ओके, इट विल बिकम ईजियर फॉर यू ऑल व्हेन यू आर स्टडिंग. ओके, सो दीज वर 2 वेरी कॉमन परक्विजिट्स दैट आर गिवन. इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे परक्विजिट्स होते हैं. सो लेट्स सी दोज. meals, meal, ओके. अभी बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसेज में क्या होता है? दे हैव अ कैंटीन एंड दे डोंट दे गिव यू मील कूपन्स दैट एक काम करो, तुमको जितना खाना है खाओ. ओके, ये कूपन दे देना एंड यू कैन ईट हाउ मच एवर यू वांट विद दैट मील कूपन्स. इट्स अ कूपन गिवन टू यू नाउ एंड द food is also at a very subsidized rate over there. In that case they are saying meal coupons are exempt. Okay, they are exempt if the value is ₹50 per coupon. Not how many, they can give you 10,000 coupons in a year, that is not okay, but ₹50 per coupon is exempt. लेकिन अगर गलती से उन्होंने तुमको 60 रुपीज़ का कूपन दे दिया तो 10 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा. ₹50 per coupon is exempt. अजीब है ना? ₹50 per coupon is exempt. Not how many coupons, 50 per coupon is exempt. Now इसके अंदर your refreshments, जो टी कॉफ़ी ऐसे सब देते हैं ना, चाय कॉफ़ी ठंडा, रिफ्रेशमेंट्स आर एग्जेम्प्ट. उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो सब कोई नहीं देखने वाला. ओके, मैं तुमको सिर्फ मील कूपन की बात कर रही हूँ. मील कूपन अगर दिया है तो उसके ऊपर ओके वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है. अगर 50 रुपये तक है, 50 रुपये से ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा. नेक्स्ट वाला देखते हैं. एनी गिफ्ट
Okay, if any gift is given to you, like a watch, if any gift is given like a watch, a bag, etc., okay, they are saying gift up to 5,000 rupees per annum is exempt, otherwise it is taxable. So let's understand, अगर मुझे गिफ्ट मिला है और 15,000 की घड़ी मिली है दिवाली पे, ओके, बहुत बार होता है दिवाली पे गिफ्ट्स देते हैं, तो अगर दिवाली पे 15,000 की गिफ्ट मुझे मिली है, देन 5,000 is exempt, 10,000 will be taxable. Okay, now see this. This is interest concession, concessional interest or interest free loan. I go to my boss and I say, sir, मुझे आप एक loan दो. Okay, so he's saying, ठीक है, I'll give you a loan, but since you're working with me for so many years, outside if the market rate of the SBI का rate है 10% for the loan, I'll give you at a rate of only 1%. Okay. SBI का रेट क्या है, स्टेट बैंक का, स्टेट का रेट कितना है 10%, मुझे कितने पे इंटरेस्ट पे मिल रहा है 1%. सो एग्जाम्पल, आई नीड 10 lakhs, I take a loan of 10 lakhs. When I take a loan of 10 lakhs, I have to pay interest. Interest is 10% is what SBI is charging, okay, per annum. मतलब कितना, 10 लाख पे 10% कितना हुआ, कितना होता है 10 लाख पे 10%, 1 लाख, 1 lakh. ओके, दैट इज व्हाट SBI इज चार्जिंग. माय एम्प्लॉयर इज सेइंग, एक काम करो, एम्प्लॉयर इज गिविंग मी इंटरेस्ट ऑफ ओनली 1% पर एनम. कितना हुआ वो 10,000. यहाँ कितना होगा 1 lakh. तो कैन आई से इमीडिएटली आई एम गेटिंग अ 90,000 का बेनिफिट? यस, नो, correct na? So now they are saying that 90,000 is going to be added to your salary. That 90,000 is going to be added to your salary. So how will you calculate it? The value or value of perquisite. Perquisite का मतलब क्या है, benefit. Value of benefit कितना हुआ? Immediately तुम लोग ने क्या बोल दिया, 90,000. कैसे किया 90,000? Okay, how did you all do? I said employer is giving you a loan 10 lakh rupees, and when he is giving 10 lakhs, he is saying interest of SBI is 10%. Okay, that means 1 लाख हुआ. लेकिन वो तुम्हारे पास से सिर्फ 1% का लोन इंटरेस्ट ले रहा है, तो तुम्हारा परक्विजिट का वैल्यू कितना हुआ या बेनिफिट कितना हुआ? वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज ओनली is 90,000. What did you do? Interest per annum by SBI कितना होगा per annum by SBI? 1 लाख less interest to employer. What will you get? Interest per annum by SBI less interest paid to employer. तो जो भी हुआ तुम्हारा वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट. अंडरस्टूड? फेयर. नाउ इसका एक एक्सेप्शन है. दिस वैल्यू ऑफ बेनिफिट यू विल नॉट टेक, नॉट एप्लीकेबल फॉर छोटा मोटा लोन्स, फॉर लोन्स less than 20,000. okay, and for medical loans, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है
ओके एंड ये सर्दी खांसी वाले लोन्स नहीं है. इफ यू हैव सम टर्मिनल डिजीज in that case or you need some operation, you take a medical loan, then you will not have to. अगर 1% भी है, okay, same example, but this becomes a medical loan. 10 lakhs का लोन लिया है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपया भी you don't have to pay any tax on the benefit that you have got. Okay, now any questions? चलो let's move forward. हाँ, can you explain the exception again? What will not get added? okay, let's say I take a 10 lakh rupee loan at 1%. My employer provides 10 lakh at the rate of 1% per annum. okay, SBI का रेट कितना है 10%, मुझे कितना मिल रहा है 1% पे. तो you will say 90,000 will be added to your salary as a benefit. Yes, no? Correct? Now, if I have taken a loan of 10 lakhs for medical purpose, okay, if it is a medical loan, in that case, I will not have to add that 90,000. Okay, I will not have to add that 90,000. Similarly, if it is a small loan, employer के पास से 10 लाख नहीं, मैंने सिर्फ 20,000 लिया है, तो वो 20,000 पे उन लोग they are not even going to see what is the interest, etc., etc. They are not going to add it as a perquisite. It's not counted as a perquisite. Okay, now let's go to the next part. Transfer of asset. Now अभी हमने फर्नीचर देखा. फर्नीचर क्या है, यूज करने के लिए, थोड़ी तुम्हारा हो गया फर्नीचर. बट अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट. सो इट इज योर बॉसेज एसेट. बॉस इज सेइंग भाई ले जा, मेरी गाड़ी ले जा, मेरा लैपटॉप आज से तेरा, या मेरा डेस्कटॉप तेरा, या मेरा फोन इज योर्स. नाउ दैट इज माइन बिकम्स योर्स. इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एन एसेट. सो इन दैट केस, लेट्स से इफ योर एम्प्लॉयर gives you his used iPhone 11, okay, that phone is now given to you, or he's given you his MacBook, okay, last year उसने लिया, ये साल दे दिया तुमको. It is a transfer of an asset. That value of the asset should be added to you. For you it is a perquisite, for you it is a benefit. So they are saying we will have to find the value of that asset. If there is a transfer of asset, we will have to find the value. क्या करेंगे, वैल्यू ढूंढने के लिए देखेंगे कौन से टाइप का एसेट है. सो इफ इट इज एनी कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ओके, डेस्कटॉप, लैपटॉप, एक्सेट्रा, यू विल टेक 50% रिटन डाउन वैल्यू. ओके, इफ इट इज द मोटर कार, तुमको यूज करने नहीं दिया, डायरेक्टली उसकी ऑडी तुम्हारी हो गई, तुमने ट्रांसफर ले लिया. ओके, 50% WDV. इन दिस केस इट विल बी 20% रिटन डाउन वैल्यू. ओके, एंड एनी अदर एसेट. अब इसके अलावा, ये दोनों एसेट्स के अलावा कुछ भी हुआ, सो यू विल टेक 10% SLM. ये क्या है, व्हाट आर दी शॉर्ट फॉर्म्स? रिटन डाउन वैल्यू. ओके, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट. I'll give you an example how to calculate written down value. 1 lakh is the value of the asset as of date. मैंने खरीदा asset 1/4/2020. एक साल के बाद वो asset depreciate होगा. There will be a depreciation in the asset. Okay, so on 31st March 21, I will depreciate the asset. The value will not remain 1 lakh. It will depreciate. Now let's say if it is a computer, they are saying अगर computer है तो ये 50% depreciate हो जाएगा. ओके, 50% depreciate हो जाएगा. 50% of what? 1 lakh. तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50,000. ओके, it will depreciate. Now this will be the value, written down value of the asset. This value will be added to your salary. Okay, this value will be added to your salary. Now similar example, okay, instead 1 lakh,
चलो अब मेरे पास एक एसेट है, लेट्स से मेरे पास एक मोटर कार है, ओके मैंने 1,00,000 रुपए में खरीदा था, नैनो खरीदा था 1,00,000 में। अब मैं तुमको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ऑन 15/10/2020। You have to find the value so that you can add it to your salary. I am giving it to you for free. फ्री में है, तुमको कुछ नहीं करना है। अब लेकिन ये तुम्हारा हो गया। इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या बोलेगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एसेट। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एसेट, ओके, you have to hit a depreciation of how much? 20%. 20% कम करना पड़ेगा। बट कब? पूरे साल भर में। डेप्रीसिएशन पूरे साल भर का होता है। यू कांट हिट इन द मिडल ऑफ द ईयर। सो इफ यू हैव ट्रांसफर्ड an asset and 1 year has not been completed, the value of the asset will be the entire value 1,00,000. You can't hit a depreciation. So this is important note. Depreciation should be for entire year. If 1 year is not completed, no depreciation. No depreciation. ओके देखो आराम से। Okay, I'll give you another example. Asset का नाम car. Employer bought it for 10 lakhs on 1/4/2018. He transferred to you on आज की डेट, ओके। फाइंड वैल्यू ऑफ परचेज। चलो कार की वैल्यू कितनी है? You have to find the value of the perquisite. Now in that case, we have to first start opening value कितनी है? Opening when I started off, opening is 10 lakhs. Okay. Now 1 year इसके बाद हमको कितना? कार में you should remember कार का depreciation कितना है? 20%. As on 31st March 19, you will hit a depreciation of 20%. Correct. So 1/4/19 में ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 80,000 कार की वैल्यू हो जाएगी। ओके। नाउ अगेन यू विल हिट अ डेप्रीसिएशन 20%। कब मारोगे? 31st March 2020। 16,000 20% हो ना, यहाँ भी हमने 20% ही हिट किया। ओके, ये कितना हो जाएगा? सॉरी 10 lakhs की 20%। अरे यार हाँ, सो दिस विल बी 2 lakhs। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 1,60,000 है ना। 1.4 अरे 1 अप्रैल 2020 को वैल्यू कितना हो जाएगा? 6,40,000। करेक्ट। Now, when can I hit the again depreciation? I can hit it only on 31st March 21. We have not reached it. Even though the transfer happened on 15/10, I can't hit a further depreciation for 6 months. Okay? ये value of the car हो जाएगा 6,40,000.
Now I am adding something on the middle. Find value of perquisite if you paid 5 lakhs for the car. What is the value of the car? 6 lakh 40. You paid how much? 5 lakhs. In that case, you paid 5 lakhs. In that case, तुमने तो 5 लाख इनकर कर लिया ना, तो तुमको बेनिफिट कहाँ से मिला? तुमको बेनिफिट कितने का मिला? 6 लाख 40 की कार है, तुमको 5 लाख में मिल गई, तो 1 लाख प्रॉफिट या बेनिफिट हो गया. वो क्या हो जाएगा? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर परक्विजिट, 1,40,000. Why? Because you paid 5 lakhs for the car. If you would not have paid this entire 5 lakhs, this 5 lakhs would not have been subtracted, and 6,40,000 would be the value of the perquisite. Are you all getting me? Chalo. Now, let's study some more perquisites today. Ma'am, बोलो. so basically 1,40,000 will be the amount that they will be paying. Will be the value of the perquisite. Will be added to 1,40,000, it. no? Yes. Value of perquisite which will be added to your salary, which will be taxed. Okay? चलो आगे जाते हैं. ये सब small things. Club expenditure. So now बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, you can become, because you are working in that company, you are allowed access to various clubs. Okay, and when I say not disco clubs, I am talking about, like in Bombay there is CCI, okay, Wellingtons, all these are Wellington, these are big clubs. Now ये clubs में only if you have a member you can use the golf course, you can use the swimming pool, okay, etc. Now for this, if your employer, free में तो नहीं मिलता है, employer ने already expense incur कर लिया है, employer has incurred the expense for you to enjoy the club membership. In that case, it will be taxed only if only you have access and no other employee has access. But if it is accessible to all employees, ज़रूरी नहीं है कि तुम वहाँ जाओ. Like it could be your gym membership. Okay, gym membership, everyone working in XYZ company can use Gold's gym membership or Talwarkar's gym membership. I don't go to the gym. Okay, in that case, I cannot say, the income tax authorities cannot come and say तुम जिम गए थे कि नहीं गए थे, तुमने फैसिलिटी यूज़ करी है कि नहीं यूज़ करी है. सिंपल फंडा है, अगर सिर्फ तुमको क्लब मेंबरशिप मिली है, okay, and if you are only a specific employee who has received it, then it will be taxed. If all employees receive the membership or the facility, it won't be taxed to anyone. It won't be taxed to anyone. Again, सुनो, अगर तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली वो मेंबरशिप ली गई है, या तुम अकेले हो जिसके लिए वो यू कैन एंजॉय द फैसिलिटीज, देन इन दैट केस यू विल बी टैक्स्ड. इफ एवरीवन कैन यूज इट, जरूरी नहीं है कि कोई यूज करे, इन दैट केस इट विल बी टैक्स्ड. It will be taxed. It will not be taxed only to those employees who are specifically getting to use. All employees do not get to use it. Everyone is getting to use, then it won't be taxed to anyone. Okay, and then what will be taxed? अब club memberships देखो, let's take club expenditure or club membership. Taxed only if membership enjoyed. By specific employee. So क्या टैक्स होगा? एनुअल मेंबरशिप फीस.
is taxed. Club expenditure or membership is taxed only if membership is enjoyed by specific employees. If it is enjoyed by everyone, कोई टैक्स नहीं भरेगा. ओके, अगर कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ है तो उनके लिए टैक्स कितना होगा? एनुअल मेंबरशिप फीस दैट द एम्प्लॉयर इज पेइंग फॉर देम विल बी टैक्स. Now next one. And does it make a difference if the person is not using it at all? What? No. So if the facility is only given to you, okay, and if you don't go, that is irrespective. कोई इनकम टैक्स अथॉरिटीज थोड़ी चेक करने आने वाला है तुम गए थे कि नहीं. वो ये चेक कर सकता है कि बेनिफिट किसको मिल रहा है. ओके, सो अगर बेनिफिट तुमको ही मिल रहा है तो तुमको टैक्स भरना है. बेनिफिट सबको मिल रहा है तो तुम क्यों टैक्स भरोगे? ओके, इट वोंट बी टैक्स बाय एनीवन. नाउ लेट्स चेक क्रेडिट कार्ड benefit of facility. Now understand this. Let's say if you are a CEO of a company, what the company will do, तुम जो भी स्वाइप करोगे ना, we will reimburse it to you. If whatever you swipe, we will reimburse it to you. In that case, the amount of reimbursement, okay, तुमने क्रेडिट कार्ड कंपनी का स्वाइप करते जा रहे हो, okay, अमाउंट reimbursed, तो तुमने 5 लाख स्पेंड किया, तुमको पूरा 5 लाख एम्प्लॉयर ने दे दिया, इट विल बी टैक्स्ड. अमाउंट रीइम्बर्स्ड विल बी टैक्स्ड. हाउएवर इफ यू स्पेंड फॉर ऑफिशियल पर्पस, फॉर अरे बिजनेस मीटिंग के लिए गए तो क्लाइंट के ऊपर स्पेंड किया ऑफिशियल पर्पस, देन इट वोंट बी टैक्स्ड. ओके, spent for official purpose, it is not taxed. Similarly, business meeting, conferences, business या official purpose same thing, उसके लिए तुमने स्पेंड किया तो तुमको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस के लिए स्पेंड किया. खुद के ऊपर करोगे तो तुमको टैक्स भरना पड़ेगा. ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं. Okay, last 3 things, then we are done with this. Okay, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत काम में आता है ये. सो नाउ मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर. एक तो हम आज करेंगे इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. देखेंगे आउटसाइड इंडिया में क्या है. चलो, तो पहले इन इंडिया देखते हैं. इन इंडिया में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुमको कहाँ मेडिकल फैसिलिटी दी है. अगर उसने तुमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी दी है, बीमार हो गया तुमको जे नायर या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, तो उसने क्या बेनिफिट दिया? वो तो गवर्नमेंट पे कर रहा है, तो तुम्हारे को जो भी मिला है इट इज़ फुल्ली एग्जाम्प्ट, इट्स वोंट बी टैक्स्ड, है ना. फुल्ली एग्जाम्प्ट या हम सिंपली लिखेंगे नॉट टैक्स्ड, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुमको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. Okay, it is a hospital that is owned by your boss, by the company. So let's say if you are working in Fortis or if you are working in Apollo hospitals में तुमको उसने ट्रीटमेंट दिया है, not taxed at all. Okay, अगर यू आर वर्किंग इन रिलायंस और अंबानी हॉस्पिटल में तुमको ट्रीटमेंट मिला है, नो टैक्स एट ऑल. इफ़ यू आर वर्किंग इन द कंपनी एंड दे हैव देयर ओन हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल, टाटाज में काम कर रहे हो, टाटा हॉस्पिटल में तुमको कोई बेनिफिट दिया है, तुमको ट्रीटमेंट दिया है, वोंट बी टैक्स्ड. ओके, हॉस्पिटल इज नॉट ओन्ड by employer, so it could be anything else.
is owned by someone else, not owned by hospital, any other place, okay, तुमको भेजा है, then amount spent by employer fully tax. तो अगर उसने 50,000 तुम्हारे लिए स्पेंड किया है, 50,000 तुम्हारे अमाउंट में ऐड हो जाएगा. अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट. जो भी वैल्यू होगा पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा. वैल्यू ऑफ पर विच इज फुल्ली टैक्सेबल. बेनिफिट कितना होगा? जितना तुम्हारे लिए उसने स्पेंड किया है. ओके, नाउ दिस वाज इन इंडिया. एनी प्रॉब्लम? लेट्स गो अहेड. ये तुम लोग को लिखना है, लिख लो प्लीज. चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं. आउटसाइड इंडिया. इतने बीमार हो कि तुमको बाहर जाना पड़ा, और अकेले तो जाओगे नहीं, बीमार इंसान तो किसी को लेके जाएगा. सो एम्प्लॉई +1 अटेंडेंट. ओके, एंड एम्प्लॉई हो सकता है एम्प्लॉई बीमार नहीं है, बट सम रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉई, वाइफ और चाइल्ड और सिबलिंग इज अनवेल. सो रिलेटिव भी जा सकता है विथ 1 अटेंडेंट. outside India. Now if outside India, medical treatment. Ma'am, could you elaborate on relative again? Yeah. So when I said who will get this perquisite, okay, ये benefit किसको मिलता है? employee को मिलता है, या employee के कोई relative को मिल सकता है. Okay, that is your mother, father, spouse, children, okay, brother, sister. ये सब It can be relative plus 1 attendant. Plus 1 attendant, correct. Okay, so it is outside India, medical treatment is provided. So if one has to go outside India, you have to incur expense. पहले तो ट्रैवल, यहाँ से जाने का खर्चा, फिर वहाँ स्टे का खर्चा, ओके, और फिर वहाँ लेट्स से यूएस जाना पड़ा, वहाँ ट्रीटमेंट का खर्चा. तो अगर ट्रैवल करोगे, पहले तो हाँ ट्रैवल करोगे तो टिकट्स खरीदोगे. ओके, दे आर सेइंग the amount is fully exempt. ट्रैवल का खर्चा is fully exempt. तुमको कोई टैक्स नहीं भरना है. if gross total income, सब हेड्स मिला के, 5 हेड्स मिला के gross total income is up to 2 lakhs. मतलब गरीब इंसान है 2 लाख तक कमा रहा है पूरे साल भर में. ओके, is up to 2 lakhs per annum. तो अगर फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अगर 2,10,000 कमा रहा है, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा. जो भी उसने ट्रैवल के लिए खर्चा किया है. किसने किया है? एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है. 5 लाख की टिकट्स आ गई, 5 लाख की टिकट्स आ गई. इन दैट केस तुमको देखेंगे कि तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम कितना है. एम्प्लॉई का ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख है, पूरे 5 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. ओके, 5 लाख की टिकट आ गई, तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम 2,10,000 है, पूरे 5 लाख तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे. इट विल बी एडेड एज अ परक्विजिट. ओके, नेक्स्ट वन, स्टे. इफ यू आर गोइंग टू स्टे देयर, आर यू गोइंग टू स्पेंड मनी इन रुपीज? तुमको यूएसए भेजा तो डॉलर में खर्चा करोगे कि रुपीज में खर्चा करोगे? वहाँ ऑब्वियसली डॉलर में. अगर जापान भेजा तो इन द येन ओवर देयर, इन दुबई भेजा तो दिरहम में. So depending on where you are gone for treatment, you will stay over there and you will spend accordingly in that particular currency. It is going to be in foreign currency, so it will all be as per RBI rules. You don't have to worry about it. तो RBI के rules के हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा कितना अलाउड है. अगर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ अगर तुम US जा रहे हो, so you can't pay money in rupees. You will always have to pay in dollars. Okay, that case again foreign currency is involved, you will just see RBI rules. Okay, got it. ये एक बार देख लो. दिस इज मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, दोनों हैं. ओके, आराम से देखो.
चल डन. नाउ नेक्स्ट पार्ट. ESOPs. ESOP सुना है क्या है? Okay. Employee stock option plan. Now in this case, if you are working in a company, what I'll do, I understand that you are very valuable to our company, so I will, if you are working in my company, I'll understand you are very valuable to my company. I don't want you to leave. I will give you a stake in the company. I will give you shares of my company. Now these shares I will not give you at the market rate. I will give you at a concessional rate, or I might even give you it at free. ओके, स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं या एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान. अब मैंने तुमको दे दिए शेयर्स, तो तुम तो शेयर्स भी लेके भाग जाओगे या बेच के चले जाओगे. उसमें एक there is a lock-in period, so you have to work for 3 years, 5 years, depending on the plan. Okay, and then after that those shares are going to be actually allotted to you. Now let's understand, ये ESOP में तुमको शेयर्स सस्ते में मिल जाते हैं. शेयर्स तुमको सस्ते में मिल जाते हैं. सो अगर फेयर मार्केट वैल्यू वो शेयर का 1000 रुपये है, तुमको वो शेयर 200 रुपये में मिलेगा. वाई? बिकॉज यू आर एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी. ना इफ यू आर गेटिंग द शेयर फॉर 200 रुपीज, व्हाट इज द परक्विजिट फॉर यू, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर यू? 1000 रुपये का शेयर है, तुमको कितने में मिला? 200 में. तो अगर 200 में शेयर मिल गया तो तुम्हारे लिए बेनिफिट 800 रुपये है. तो हम क्या करेंगे? We will find out the fair market value of the share. Fair market value of a listed company is very easy. क्या करोगे? ओपनिंग क्लोजिंग देखोगे on the date of the ESOP when it is given to you. Okay, FMV तुम निकालोगे. अगर प्राइवेट कंपनी है तो तुम उसका वैल्यूएशन करोगे. ओके, ऑन FMV कब का? ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन. जब तुमने एक्सरसाइज किया वो ऑप्शन, मतलब तुम बोल रहे हो हाँ मुझे ये शेयर्स चाहिए. अब तुमको फ्री में तो नहीं मिलेंगे, यू विल हैव टू पे समथिंग. ओके, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई दैट विल बी रिमूव. FMV लेट्स से 2000 रुपया है. कब? जब तुमने एक्सरसाइज किया. अब तुमने जैसे एक्सरसाइज किया, तुम्हारे वो तो जेब में लेके बैठते नहीं है तुम्हारे लिए शेयर्स, दे विल हैव टू अलॉट इट टू यू. सो इट टेक्स 15-20 days, 30 days फॉर अलॉटमेंट. सो देन यू विल से द वैल्यू परक्विजिट और वैल्यू ऑफ द शेयर. ओके, यू विल से ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट. और तब तुमको टैक्स भरना पड़ेगा जब तुमको शेयर्स एक्चुअली मिल गए हैं. वो शेयर तुम्हारे पास ही रहेंगे. तुम बेचोगे कब? जब लॉक इन पीरियड खत्म होगा. वापस सुनो, ESOP क्या होता है? शेयर्स आर गिवन. ओके, यू हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, देन ओनली दे विल बी allotted to you. Once it is allotted, you can't go in the market and sell it. You have to keep it with you till the lock-in period is over. Now we are talking about when the share is given to you. 1000 रुपये का शेयर तुमको मिल गया, कितने में? 200 रुपये में. ओके, एग्जाम्पल ले रहे हैं. 1000 रुपये का फेयर मार्केट वैल्यू है, तुमको कितने में मिल गया? 200 में. बट ये 1000 तुमने FMV में एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट ये कैसे पता चलेगा कौन से दिन में? स्टॉक मार्केट में तो ऊपर नीचे शेयर्स होते रहते हैं रोजाना. तो तुम क्या करोगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एवरेज निकालोगे. बट कौन से दिन पे? द डे व्हेन यू एक्सरसाइज द ऑप्शन. दे गिव यू टाइम. In these 1 week, decide if you want to buy the share or not. So then you exercise the option, you pay 200 rupees. Okay, तब तुमको शेयर वो दिन पे नहीं मिलेगा जिस दिन तुमने 200 रुपये दिए. They will allot the shares. वो अलॉटमेंट के लिए टाइम लगता है. तो let's say the date of allotment after 15 days you get the shares. तो 800 रुपये का तुमको बेनिफिट हो गया. वो 800 रुपये पे will be added to your salary. Okay, will be added to your salary. एक बार आराम से देखो. See here on the date of exercise and this is on the date of allotment. When you actually get the share, that time it will be taxed. That time you will find out the value. देखो आराम से.
चलो, now the last part and then we are done for the day. Profits. We are not done with perquisite yet, huh? We are just done with one part of perquisite. Perquisite has two parts. We are done with one part. कल छोटा सा एक और part करेंगे, फिर हो गया. Profits in lieu of salary. Okay, that is section 17. प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या क्या है? कॉम्पेंसेशन, ये ऑन टर्मिनेशन. तुम छोड़ के जा रहे हो, तुमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया. व्हाट इज दैट? प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी. ओके, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी. वो तो तुम्हारा एम्प्लॉयर रहा नहीं, तुम तो टर्मिनेट हो गए, बट तुमको पैसा मिल रहा है. दे आर सेइंग इवन इन दिस केस इट विल बी टर्म्ड एज सैलरी. इट विल बी नोन एज प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी इंस्टेड ऑफ सैलरी. ओके, कॉम्पेंसेशन ऑन टर्मिनेशन. पेमेंट रिसीव्ड from PF. ना ये प्रोविडेंट फंड देखेंगे क्या है. प्रोविडेंट फंड इज बेसिकली अ फंड वेयर द एम्प्लॉयर पुट समथिंग, द एम्प्लॉई पुट समथिंग, और उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट होता है. पीएफ में एम्प्लॉयर कुछ डालता है, एम्प्लॉई कुछ डालता है, और उसमें इंटरेस्ट जनरेट होता है. सो नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस, एम्प्लॉयर ने पैसा डाला और तुमने भी पैसा डाला. 10 साल तक तुम काम कर रहे थे, वो जमा होते गया हर महीने. ओके, लमसम जब तुमको रिसीव होगा वो प्रोविडेंट फंड होगा. लेकिन कभी कभी तुमको थोड़ा एक्सेस मिल जाता है, इन एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड इंटरेस्ट. सो एम्प्लॉयर माइट, देयर इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन दैट ही पुट्स एवरी मंथ. ओवर एंड अबाउ दैट इफ यू रिसीव समथिंग इन अ पीएफ, ओके, वो इंटरेस्ट के अलावा और वो उसके कंट्रीब्यूशन के अलावा खुशी से तुमको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. बेसिकली तुम छोड़ के जा रहे हो तो उस पर कॉम्पेंसेशन मिला या पीएफ के नाम पे दे दिया, वो सारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. इट विल बी टैक्स. जॉइनिंग बोनस बहुत कॉमन है. जॉइनिंग बोनसेस ये जब IITians या IIM से होते हैं ना, उन लोग को टू एंटाइज देम टू जॉइन द कंपनी, दे रिसीव समथिंग कॉल्ड एज अ जॉइनिंग बोनस. तुम्हारा एम्प्लॉयर भी नहीं बना वो, ओके, लेकिन उसने तुमको पैसे दिए. दैट इज कॉल्ड एज अ जॉइनिंग बोनस. एंड द लास्ट पार्ट, बोनस under a key man insurance policy. Bonus received under a key man insurance policy. Now understand what is this? A key man for any company, okay, is the main person, the CEO or the person who starts it, the founder. Now अब वो चला गया बिजनेस छोड़ के, या हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लिए 10 साल के लिए. बेसिकली 10 साल तक ये रहना चाहिए. अगर 10 साल के बीच में छोड़ के गया तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे द एम्प्लॉईज ऑफ द कंपनी. अंडरस्टैंड दिस. एम्प्लॉईज कम टुगेदर एंड रियलाइज दैट लिसन, हम जो कमा रहे हैं ना ये कंपनी में इज बिकॉज ऑफ द CEO. जिस दिन CEO चला गया, वी विल द कंपनी विल नॉट डू वेल एंड वी विल नॉट इवन गेट आवर सैलरीज. नाउ लेट्स से द एम्प्लॉईज टेक द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी for XYZ person. In this case जहांगीर ट्यूटोरियल्स में जुबैर जहांगीर का हमने की मैन इंश्योरेंस ले लिया, हम सारे एम्प्लॉईज ने. सर ने 10 साल कंप्लीट कर लिया, हमने इंश्योरेंस लिया 10 साल का. सर ने 10 साल कंप्लीट कर लिया, हमको बोनस मिला एम्प्लॉईज को. ओके, दिस बोनस दैट वी हैव रिसीव्ड इज नॉट कमिंग फ्रॉम आवर एम्प्लॉयर. जुबैर सर इज नॉट गिविंग अस. ये किसने दिया हमको? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी है उसने दिया. ओके, इट विल स्टिल बी टर्म्ड एज प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी. इट विल बी टर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ सैलरी एंड इट विल बी टैक्स्ड. ओके, ये देख लो. एक तो टर्मिनेशन पे जा रहे हो तब दिया, तो दोनों
टर्मिनेशन, कॉम्पेंसेशन ऑन टर्मिनेशन एंड पीएफ दोनों जाते टाइम मिलता है, या ज्वाइनिंग आते टाइम बिफोर ही इवन बिकेम योर बॉस ही इज गिविंग यू मनी, और द लास्ट वन इज स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। ये चारों क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ओके, सो एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या किया। ओके, वी स्टार्टेड विथ इनकम फ्रॉम सैलरी। हमने देखा सेक्शन 15 इज अ चार्जिंग सेक्शन। फर्स्ट थिंग, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना चाहिए, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। सिंपल इज एरियाज ऑफ सैलरी। ओके, देन वी सॉ सैलरी में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, सारे कंपोनेंट्स ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारा ग्रॉस सैलरी। नाउ सैलरी का पहला कंपोनेंट इज बेसिक सैलरी, ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। स्पेशल अलाउंसेस, ओके, that all is given here. Special allowances, all allowances are taxable except if there is a special allowance जिसके लिए हमको exemption है 10, 14 और 10, 13 है। फिर perquisites है, वो सब हम ऐड करके क्या बन जाएगा, हमारा ग्रॉस सैलरी। अब हमने यहाँ अलाउंसेस देखे, अलाउंसेस में हमने स्पेशल अलाउंसेस में यूनिफॉर्म अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ओके, डेली अलाउंस, रिसर्चर हेल्पर, एग्जाम टू द एक्सटेंट यूज। अगर यूज़ किया है तो ही तुम एग्जामेशन क्लेम कर सकते हो, नहीं तो नहीं मिलेगा। एग्जाम अप टू अ लिमिट, तुमको लिमिट्स दी है, वो लिमिट के ऊपर तुमको एग्जामेशन नहीं मिलेगा। अप टू अ लिमिट, दैट इज द मैक्सिमम यू कैन गेट, बट इफ यू हैव यूज्ड लेसर देन द लिमिट यू विल गेट ओनली दैट मच। इफ यू हैव यूज्ड मोर देन द लिमिट यू विल गेट द लिमिट। ओके, सो ट्राइबल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, एजुकेशन, ड्राइवर, हिली एरिया एंड अंडरग्राउंड, ये सब हमने देखा। फिर हमने HRA देखा, HRA इज हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में हमको एग्जामेशन कितना मिलेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट रिसीव 40 और 50% ऑफ सैलरी। 50% कब मिलेगा, इफ इट इज़ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, एंड देन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। फिर सैलरी किसको बोलते हैं, B, C और D, दैट इज बोनस, बेसिक, commission and dearness allowance. Dearness allowance should be in terms, percentage or RDA. Commission should be a percentage of turnover. Okay. Then we saw all other allowances which are fully taxable. However, High Court, Supreme Court के judges को जो पैसा मिलता है, UN members, if they have received any amount, okay, as allowances, or government employees have received any allowance while visiting outside India. मतलब आपके जो CM है, प्राइम मिनिस्टर है, ट्रैवल करते हैं आउटसाइड इंडिया, खर्चा करते होंगे ना आने जाने का, वहाँ रहने का, वो सब क्या है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, घूमने फिरने के लिए नहीं। हाँ, वाइल विजिटिंग आउटसाइड इंडिया ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, इट्स अंडरस्टूड। ओके, अब तुम घूमने चले जाओगे तो ऑब्वियसली तुमको क्यों टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ये सब के बाद क्या हो गया, हमने देखा कि ग्रॉस सैलरी मिलेगा सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके। अब ये ग्रॉस सैलरी में हमने 3 डिडक्शंस देखे। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 का पूरा वन शॉट तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, द अलाउंस का डिडक्शन, ये डिडक्शन जो है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगा। कितना है अमाउंट, 20% ऑफ द बेसिक, 5,000 रुपीज़, और अमाउंट रिसीव विच एवर इज लेस। Professional tax, maximum you can get 2,500. If you have paid 2,000, you will get 2,000. You have paid 5,000, you will get 2,500. Are you with me? Okay. Next one is perquisite. Perquisite is क्या, any monetary, non-monetary benefit. Basically तुमको कोई benefit मिल रहा है तो, okay? तो हमने देखा एग्जाम्पल, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अगर घर दिया है तो तुम क्या देखोगे, घर इज ओन्ड बाय whom? If it is owned by the government and you're a government employee as per government valuation. If it is a non-government employee, you will see whether it is rented or it is owned. If it is rented, it will be rent charges of 15% of salary. If it is owned, it will depend on where is the house given. Okay, कौन सी सिटी में, कौन सी एरिया में, तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिटरमाइन होगा। पॉपुलेशन लेस दैन 10 lakhs, 10 lakhs to 25 lakhs, or 25 lakhs एंड अमाउंट, तो 7.5, 10 and 15%. ओके, नेक्स्ट इज होटल अकोमोडेशन। अगर होटल अकोमोडेशन दिया है तो तुम सिंपली देखोगे स्टे कितने दिन के लिए, 15 दिन से ज़्यादा है तो तुम्हारा 24% ऑफ सैलरी आ जाएगा और होटल चार्जेस। नेक्स्ट इज डुअल अकोमोडेशन, तुमको 2 घर दिए हैं, तुम्हारा ट्रांसफ़र हुआ है, 2 घर मिले हैं। इन दैट केस
यू विल सी इफ़ इट इज़ हेल्ड फॉर 90 days, 3 month से ज़्यादा अगर दोनों घर मिले हैं तो तुम क्या करोगे, पूरा दोनों घर को ऐड करके एग्रीगेट वैल्यू लोगे। अगर 3 month से ज़्यादा एक ही घर है, इफ़ द हाउस इज़ गिवन फॉर ओनली less than 90 days or less than 3 months, then you will take value of only one house, whichever the lower house। अगर एक का वैल्यू 1 लाख है, दूसरे का वैल्यू 1,20,000 है, तो तुम 1 लाख वाले का वैल्यू ऐड करोगे अपने सैलरी में। ओके, नेक्स्ट इज हमने फर्नीचर देखा। अगर तुमको घर के साथ फर्नीचर भी दिया है तो यू विल फिगर आउट द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू क्या करोगे, एम्प्लॉयर के पास से ओन्ड है या रेंटेड है। ओन्ड है तो तुम सिंपली देखोगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर रेंटेड है तो यू विल सी द रेंट चार्जेस। नेक्स्ट इज मील कूपन। मील कूपन में हमने क्या देखा था, 50 रुपीज़ तक मील कूपन इज एग्जेम्प्ट। 50 रुपीज़, अगर 50 रुपीज़ से ज़्यादा है तो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी टैक्स्ड। गिफ्ट अप टू ₹5,000 पर एनम इज एग्जेम्प्ट, उससे ऊपर का विल बी टैक्स्ड। इंटरेस्ट कंसेशन और इंटरेस्ट फ्री लोन, दे आर सेइंग SBI के रेट से तुमको जितना कम अमाउंट मिल रहा है, SBI अगर 10% दे रही है, तुमको 8% में लोन मिल रहा है एम्प्लॉयर के पास से, तो 2% टैक्स हो जाएगा। क्या करोगे, इंटरेस्ट बाय SBI लेस इंटरेस्ट बाय एम्प्लॉयर, जो भी हुआ वैल्यू ऑफ द बेनिफिट। इसमें तुम दो चीज़ें नहीं लोगे, लोन्स विच आर लेस देन 20,000 एंड मेडिकल लोन्स, लोन्स दैट आर लेस देन 20,000 पर एनम एंड मेडिकल लोन्स। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट। मेरा एसेट अब तुम्हारा, ओके, कंप्यूटर दे दिया, मोटर कार और एनी अदर एसेट। ऑल यू हैव टू डू इज टेक द written down value of the asset. For computers it is 50%, for motor cars 20%. In case of any other asset you will take a straight line method. ये क्या है, depreciation we will see जब ये हम इसे sums करेंगे तब। ओके, डेप्रीसिएशन, बट इसमें एक चीज़ हमको याद रखना है, इट शुड बी टेकन फॉर द एंटायर ईयर। यू कांट टेक डेप्रीसिएशन फॉर 11 months, 5 months, 6 months। पूरे साल हुआ तो ही डेप्रीसिएशन ले सकते हो, नहीं तो नो डेप्रीसिएशन इज अलाउड। ओके, नाउ देन वी सॉ क्लब मेंबरशिप, क्रेडिट कार्ड। क्लब मेंबरशिप क्या है, इट इज़ द एनुअल मेंबरशिप विच इज टैक्स्ड ओनली टू द स्पेसिफिक एम्प्लॉय हु इज एंजॉइंग द क्लब मेंबरशिप। इट इज एंजॉयड बाय ऑल, कोई ज़रूरत नहीं। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का बिल तुम्हारा बॉस पे कर रहा है, तो जो भी अमाउंट वो पे कर रहा है वो तुम्हारे हाथ में परक्विजिट हो जाएगा। ओके, बट अगर तुमने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए स्पेंड किया है तो नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, यू विल सी कहाँ दिया है, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। अगर इन इंडिया दिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो इट विल नॉट बी टैक्स्ड। सिमिलरली ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, नॉट टैक्स। इट इज़ नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, वो अपनी जेब से पैसे निकाल के दे रहा है, तो जो भी तुम्हारे लिए उसने स्पेंड किया है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, वो वैल्यू ऑफ द परक्विजिट होगा। अगर आउटसाइड इंडिया तुमको भेजा है ट्रीटमेंट के लिए, तो बेस्ट स्टे और ट्रीटमेंट तुम क्या करोगे, यू सी RBI रूल्स। अगर ट्रैवल के लिए दिया है, यू विल सिंपली सी उसका ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम है तो ट्रैवल पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो ग्रॉस टोटल इनकम उसका 2 लाख से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, एंड द लास्ट पार्ट वी डिड वाज ESOP। ESOP में हम क्या देखेंगे, तुमको शेयर्स दे रहा है, शेयर्स अगर सस्ते में दे रहा है, लेसर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, द अमाउंट दैट यू आर गेटिंग बेनिफिट इज़ द परक्विजिट। तो अगर 1000 रुपये का शेयर है, 200 रुपया तुमने पे किया है, 800 रुपया बेनिफिट हो जाएगा। ओके, एंड देन वी सॉ कॉम्पेंसेशन इन लिeu ऑफ सैलरी। तो हमने बोला ज्वाइनिंग बोनस हुआ, या टर्मिनेशन पे पैसा मिल रहा है, या की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से बोनस मिल रहा है, वो सब क्या होगा, इट विल बी, दो इट इज़ नॉट अ सैलरी, इट विल बी टर्म्ड एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एंड विल बी चार्ज अंडर सेक्शन 17। ओके, नाउ we are done with today's session.